गुड मर्निङ। हेलो अभिषेक सर, आज हाम्रो कलेजमा प्रोग्राम छ, त्यो प्रोग्रामको विषयमा छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। पहिले नमस्कार सबैजनालाई। र आज हाम्रो देख्नुहुँदैछ कलेजमा एउटा प्रोग्राम राखिएको छ जसमा सायद हाम्रो जति पनि एउटा पर्सनलाई कसरी मृत्युको मुखदेखि बचाउनु पर्छ त्यसमा एउटा प्रोसेस देखाएको छ। त्यसमा कसरी उसलाई कस्तो स्टेप्स लिएर चाहिँ हामीले उसलाई बचाउन सक्छ त्यसको मेन आइडिया नै त्यो प्रोग्रामको यही छ। र आज देख्नुहुँदैछ सबैजनाले के गर्दैछ भनेर। ओके आफ्नो रुममा हुनुहुन्छ। ओके, हाम्रो यहाँनिर respected principal sir, special guests, teachers, seniors, juniors, and my batchmate. Today, I welcome you all in this special workshop program on first aid. So, down the line, I request our principal sir to offer khada to our special guest, Sir Pradeep Mandal Khadi. So without delay, I would like to give a small introduction of our special guest, Pradeep Mandal Khadi, Secretary and Associate Lecturer, Institute of Preventive Awareness, Kolkata, achieved a certificate from Global Institute of Healthcare Management, Delhi, certificate holder from WHO regarding emerging respiratory viruses, including COVID-19, certificate received from Divine Bliss Foundation and Pragya Foundation, Kolkata, special orientation from IMA, Behala, branch, Kolkata, having experience of conducting workshop on first aid and health education at different school and B.Ed, D.Ed college around West Bengal, Bihar, Jharkhand from last 20 years. So without delay, I would like to welcome our special guest on stage. Thank you. Students, and we were in touch with the sir from the last 4 months. We were in touch, but we could not find the exact time when to have. So lastly, we find that 26th. Earlier we thought of having on 23rd. But because of that busy schedule, they could not give us the time. So then it has been decided for the 26th. So I thought it's okay, even though we had the plan to have this session after lunch. But since he released early in the morning by 11, so I thought let us have this program. So while going through the details of this program, I found myself it's quite important for we all. It's not for the students, but we the teachers also to be aware of what to do and what not to do at the time of emergency. And emergency may happen at any moment of time to anybody. It does not require the time, or it does not give the instinct that is it going to happen. So for that, it's need of the hour that we must be aware of what to do, how to do, when to do, and when we should make them to aware to the primary health centers or something like that. Now, in day-to-day life, we are seeing that many people while talking and dancing or doing something falls down and dies because of the heart attack and something like that. And it's quite normal that it's happening within our country. And by that time, if we can help to somebody, even in case of the road accident or anywhere, so it's the urgency. It's not urgency in case of those, but it's also urgency now if some blood loss or something is happening, or some cut or wound has happened. So how to have the bandage and all these things. If any bracket or something has happened, so how to handle those cases. Little bit we might be knowing, but exactly and what the procedure, the right manner and how it should have, we may not be knowing. And that's why I thought it's the need of the hour we must be aware of. So hoping that
The session will be quite useful for we all, neither not for the students but for we the teachers also. What is the basic need? The basic need is we have to tackle the situation in case of an emergency, in case of profuse bleeding, in case of shock, in case of profuse, actually we need 5 liters of blood. We need 5 liters of blood. If 1 liter is lost, then life of the patient will be at stake. He or she will be in danger. Life and death patient analysis. So that in case of bleeding, we should stop it immediately to save anybody's life. There are only 2 ways to stop bleeding, which is direct pressure and indirect pressure. Direct pressure means spot pressure. Exactly when the bleeding starts, we put pressure with our finger or our palm and continue the pressure for 5 to 15 minutes. Why? Why do we continue pressure on the spot of bleeding 5 to 15 minutes? Just to coagulate blood. When we put pressure on the spot of bleeding and continue the pressure, blood comes from the capillary, slow and losing easily controlled, slow and losing easily. Slow and losing easily, and easily controlled. There is no trouble to stop this type of bleeding. Second is venous steady flow. अगर आप लोग ठीक से समझ में नहीं आएंगे, आप कैसे समझाएंगे आपका स्टूडेंट? ये वेस्ट बंगाल में आज से करीब 20-15 साल पहले, 20 साल पहले बात मैं कर रहा हूँ, उसी टाइम में ये सिलेबस में कंपलसरी था स्टूडेंट के लिए, हर स्टूडेंट्स के लिए, मतलब वो 8, 9, 10 इस स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी था। और उसी टाइम में स्टूडेंट को ये फिजिकल एजुकेशन में ऐड किया गया था और उसी टाइम में बोर्ड एग्जाम में आया करते थे और स्टूडेंट्स एग्जाम करते थे, सबको स्टार्ट करते थे और उसका फर्स्ट एड कॉपी को चेक करते थे क्योंकि वो फिजिकल एजुकेशन में थोड़ा सा मार्क्स ऐड किया था उस टाइम। अभी भी है वो सिलेबस में, लेकिन वो लोअर क्लास में 6, 7 तक है, 6, 7 शायद 8 भी हो सकता है, लेकिन 9, 10 में अभी ऐसा नहीं है, लेकिन ऑप्शनल हो गया है। अगर आप देख सकते हैं तो लेके नहीं तो पता नहीं चला क्योंकि बाहर से तो एक्सपोजर नहीं है, एक्सटर्नल बिल्डिंग का कोई एक्सपोजर नहीं है, तो इसीलिए तो इनका अंदरूनी गुण का भाव जारी है, which is very dangerous than external bleeding. Internal bleeding is very dangerous than external bleeding. Mind coverage. ये जो हम लोग जो कहते हैं ना, ब्रेन हमारे, अरे भाई ब्रेन हमारे क्या जानकारी की जरूर होना चाहिए आपको। ब्रेन हमारे थोड़ी आप बाहर से देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। सर दर्द ज्यादा होता है कि बोले रिकरिंग सर दर्द होगा, रिकरिंग हेडेक, one of the vital cause of रिकरिंग हेडेक, ऐसा मत गलत मत सोचिए कि हेडेक होने से वो आप समझ आएंगे फाइल किया होने का मतलब, तो ऐसा मत सोचिए। और अदर कुछ सिम्टम्स हैं बाद में एकदम खत्म होने से पहले थोड़ा पहचान के बारे में ज्ञान हो जाता है और थोड़ा ट्रॉमा भी हो जाता है। ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो जाने से इंसान को क्या होता है, ट्रॉमा पैदा हो जाता है, काफी ट्रॉमा हो जाता है। उसको ट्रॉमा के लिए तो ट्रॉमा क्या से जाते ले जाना वो तो सब ठीक है, लेकिन अभी घर में है या मरीज जो करते हैं उसको ऐसा करके रख दीजिए, उसके बाद उसको जब अस्पताल पहुंचाना है तो उसी ढंग से अब लेके पहुंचाइए, तो उसके बाद डॉक्टर के असिस्टेंट आपको मिल जाएगा और ट्रॉमा हो गया तो ट्रॉमा क्या है रख दिया जाएगा ताकि क्या करनी कॉम्प्रोमाइज करके कर दीजिए। So you need just to minimize the pain. Just you have to minimize the pain. You have to ensure that भाई नहीं देखिए इसका जो होना चाहिए था उतना नहीं हुआ कि मैंने इसको संभाला। ये संभालने का काम आपको करना है, आपको डॉक्टर नहीं करना है। The not only doctor. अब मैं क्यों कभी ऐसा होता है कि हम बोलते हैं बोलिए तो why you are using Dettol or Saffron? Why? तो बोले कि सर वो तो उसमें से कीटाणु को मारेगा कौन? Dettol Saffron कीटाणु को मारेगा, तो डॉक्टर नहीं क्या जरूरत है? घर में Dettol रख दो, वो Saffron रख दो, तो कीटाणु मार देंगे। अरे नहीं, Dettol Saffron या क्या करते हैं तो ये वो कीटाणु को पैदा नहीं होने देते। Antiseptic, this is called antiseptic. Dettol and Saffron is used to stop infection. Infection को रोकने के लिए Dettol Saffron इस्तेमाल किया। हमारा मुंह में जो सलाइवा है ना, मुंह का सलाइवा है, अब जानते हो सलाइवा की एंटीसेप्टिक है, जानते हैं? मुंह का सलाइवा जो है ना, वो अगर ऐसा हुआ आपको Dettol कैरी नहीं करना, अब थोड़ी Dettol कैरी करना है ना, आपके बॉक्स कैरी करना, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो गया, अगर आपको कैरी किया तो हो गया ना, तो हाथ धो लीजिए, सलाइवा निकाल दूसरी जगह पर लगा दीजिए, वो भी एंटीसेप्टिक है, वो भी एंटीसेप्टिक है। अब देखिए जानवर एक दूसरे को काट देते हैं, उसका जो सलाइवा हो पावरफुल एंटीसेप्टिक है, ये ऊपर से क्या हो, ये ऊपर से क्या, खुदा हम क्या कहते हैं ना, we have faith, अगर faith होगा तो उसका बहुत कुछ होगा। हम लोग faith को अपना क्या बोले सन समझते हैं इसका,
हम लोग legs above heart level to increase blood circulation within heart and brain. ऐसा बोले कि भाई सर के नीचे तकिया बांध दीजिए, दोनों पाँव को उठा के इसके नीचे तकिया दे दीजिए, बांध उठा दीजिए ताकि उसका ब्रेन और हार्ट के अंदर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाए, to increase the circulation towards the brain and heart. So this is the recovery position of unconscious person. ये देखिए recovery position, कीप दैट साइड करके जिस तरह लेफ्ट तरफ होगा, एयर नॉइज क्लियर करने के लिए मुंह को ऐसा कर दीजिए, नीचे नहीं ऐसा, बाएं तरफ होगा ऐसा, दाहिना तरफ होगा तो ऐसा ऐसा कर दीजिएगा. हैंड सपोर्ट, हेड देखिए हाथ से, हेड को सर को सपोर्ट दे दिया हाथ से. दी ये कोरोना बहुत कुछ समझा है. आप एक बात देखिए, कोरोना ये बोले ना कि सोशल डिस्टेंसिंग, जस्ट मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग. क्यों? ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो. तो कोरोना में समझाया कि भाई बाहर से आए हैं आप तो आपका बाहर का फेस को अलग से कर दीजिए, हाथ में धो लीजिए. पोजीशन, ये प्रोनिंग पोजीशन क्या है? ये प्रोनिंग पोजीशन है तो हम लोग ऐसा चीज डालते हैं उल्टा करने का. अब देखिए इसको ऐसा पेट के नीचे था ताकि आपका पतला ताकि आप प्रेशर दे दीजिए इसको. ऐसा गिराने से क्या होता है कि ऑक्सीजन वो जो ड्रॉप कर रहे थे जल्दी उतना जल्दी ड्रॉप नहीं करता. ऐसा प्रोनिंग पोजीशन में लेकर कम से कम उसको अस्पताल पहुंचाओ. तो अगर सांस की कमी हो रहा है ना, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जिसको हम कहते हैं, अगर द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, कीप दिस प्रोनिंग पोजीशन एंड टेक द पेशेंट टू द हॉस्पिटल फर्स्ट. जंप खाओ तो इनसाइड उसका बात है, उसका बात है. ब्लड coagulates down through the skin, creating a black spot. Creating a black spot because blood coagulates down through the skin. काला धब्बा बन गया, इसीलिए ना त्वचा के नीचे खून जम गया और काला धब्बा. लैसरेटेड में मतलब क्या होता है कि भाई इधर में कि चिथारे को भाव आ जाता है, चिथारे को भाव वो सोहर में सिंह का सारा खत्म हो जाता है, राइट. चिथारे को भाव तुम्हारे को मानिमा डिगो की साइड का भाव भाई साफ हो. तो बेगम से सागौन से इसको साफ करना चाहिए. इनसाइड डीप कट गहरा से बहुत डीप कट. तो ऐसा जख्म तो उतना आसानी से भरेगा नहीं. इसके लिए तो स्टीच का जरूरत होता है. जैसे आपको समझाया गया कि भाई ऐसा जख्म गहरा हो गया है तो उस पर कस के पट्टी बांध दो. एक पट्टी से नहीं हुआ तो उसका और एक पट्टी बांध. ऐसा कस के पट्टी बांध के उसका पता ले लेंगे, डॉक्टर ने क्या करेंगे, हां दोनों की तरफ से टाका ठीक. फिर सीधा भाव तूने दी को चीज देखो सिखाने, फिर सीधा भाव मुझे को चीज है हला हो जाए. रीड बैक हियर दबा डाल. रिपीट. If you are not able to plug the foreign body from the wounds in case of puncture, do not try to plug it. This is not your job. This is the job of a doctor, of a medical practitioner. You should apply. You should apply pressure around the wound. एक रिंग बना लीजिए, देखिए इसके बीच में खाता है और वो जो जुड़ी हुई चीज जो फॉरेन बॉडी इसके अंदर में जो चुप गया है उस पर दबाव करिए. उसके चारों ओर दबाव डालने के लिए इसी को उसको सीधा उसकी जुड़ी हुई चीज के अंदर में बैठा दीजिए और फोकस कराओ. तो हड्डी की टूट देखिए कि हड्डी टूट कर ये करीब रह गया, एक करीब रह गया है, एक थोड़ा सा इधर आ गया. तो ये है कि क्लोज फ्रैक्चर, बाहर से पता नहीं चलेगा. लेकिन ऐसा आप सही नहीं, हड्डी टूट गया इंसान को पता नहीं चलेगा. ठीक है नहीं पता तो जरूर चलेगा, बाहर से आप दिखाई नहीं देगा लेकिन पता तो चलेगा क्योंकि इतना दर्द होगा ना, इंटेंस पेन. Cause of fracture is intense pain. इतना दर्द होगा सहन नहीं पाएंगे, intolerable pain, intense pain. At the same time, sorry, सुना नहीं पाएंगे. और क्या? Absolute loss of power. Absolute loss of power. थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे. तो हाथ टूट गया, पाँव टूट गया. ये बहुत सीरियस टाइप ऑफ फ्रैक्चर है. ये एकदम वो टूटी हुई हड्डी बाहर निकल, वो हाथ में देखिए वो हड्डी का ऐसा बाहर निकल. सीरियस टाइप ऑफ फ्रैक्चर. तो ऐसा फ्रैक्चर में तो ऐसा बात मान लीजिए कि फ्रैक्चर में हम लोग कुछ नहीं कर पाए. फास्टेट में इसमें देखिए कम्युनिकेटिव फ्रैक्चर जब हड्डी टूट कर कई टुकड़ों में बढ़ जाता है, ऊपर से इंसान नीचे गिर टूटी हुई हड्डी कई टुकड़ों में. तो अभी डॉक्टर ये क्या करते हैं, डॉक्टर ये क्या करते हैं कि वो टुकड़ा हुआ हड्डी को करीब लाकर स्टील इसको ट्रैक्शन कहा जाता है.
ये फ्रैक्चर के बारे में होता है, फ्रैक्चर। जैसा मान लीजिए किसी इंसान का हड्डी टूट गया है, पैर दबा होगा, तो उसको ऐसा उसको रखना है, पाँव को इसी तरह ऐसा करके रखना है, तो कैसे रखेंगे? तो नहीं पाएंगे, इसीलिए फ्रैक्चर में पाँव को फिट कर देते हैं, वो फ्रैक्चर पकड़ के रख देते हैं, टूटा हुआ पाँव, सो फ्रैक्चर पाँव। कोई मतलब ये नहीं मत सोचिए गर्म होने से ये बात चालू है कि उस पर बर्फ ठंडा पानी देना नहीं, नहीं गलत है, बर्फ ठंडा पानी नहीं, नॉर्मल पानी जो होता है, नॉर्मल पानी जो होता है वही डालते हैं। आप कुछ कीजिए सर, नॉर्मल पानी बोला भाई वो तो रिलेटेड है, कोई शॉक जब जाने से आप को शॉक भी हो सकता है, सदमा भी हो सकता है, इसीलिए ठंडा पानी मत डालिए, बर्फ ठंडा चिल्ड वाटर, चीजों पानी नहीं, चिल्ड वाटर नहीं, ऐसा नॉर्मल जो वाटर है उसका जब होता है, इसलिए जस्ट टू मिनिमाइज बर्निंग सेंसेशन। कुछ नहीं आप समझो अकेला ऐसा हुआ आप ऐसा करो, पहले स्टॉप रुक जाओ, एक कदम आगे मत बढ़ो, जब मैं रोको तब रुक जाओ, देन स्टॉप, जस्ट डाउन टू द उसके बाद बैठ जाइए और उसे रोल कर दीजिए, उसके बाद क्या हुआ? स्टॉप, मूवमेंट को स्टॉप करो, डाउन टू अर्थ, नीचे हो जाओ, लेफ्ट जाओ, रोल करते रहो, कोई प्रॉब्लम है किसी को? नाउ बाइट प्रिवेंटिव मेजर ऑफ हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मींस हाइड्रो मतलब पानी और फोबिया मतलब डर, पानी में डर हाइड्रोफोबिया। अब यह बात करता है सिर्फ कुत्ता नहीं, बिल्ली ने काट लिया, चूहा ने काट लिया, फौरन डॉक्टर के पास पहुंच जाइए, दिखाइए। अगर डॉक्टर ने कहा कि आपको 3 ठो हाइड्रोफोबिया एंटी रेबिस वैक्सीन खाना है, उसको 3 ठो लेना है तो उसको 3 ठो लेना, जिसको कहा कि 4 ठो लेना तो 4 ठो, जिसको कहा 5 ठो तो 5 ठो लेना। ये 2 टाइप का स्नेक्स हैं, एक है हीमोटॉक्सिक और एक है न्यूरोटॉक्सिक। हीमोटॉक्सिक जिसको कहा जाता है हीमोटॉक्सिक स्नेक्स में मतलब आपको मिलेगा कोबरा ग्रुप और वो भी हुनेट स्नेक है, 50 मिलीग्राम पॉइजन खा देते एक बाइट में। रसेल भाई का जो है ना, वन टाइम बाइट में 17 ग्राम से भी ज्यादा, 17 मिलीग्राम से भी ज्यादा ये पॉइजन खा देते हैं, इसीलिए रसेल भाई और रसेल भाई अगर काटने से क्या होता है, नर्वस सिस्टम पर डैमेज कर देते हैं, होगा एक टीटेनस इंजेक्शन दे देंगे माइंड। तो क्लियर हुआ? तो ऐसा 2 चीज हुआ, तो इस जेनेटिक डिजीज है। और आज ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है क्या हुआ, प्रेजेंट सिचुएशन में हम लोग इतना टेंस में रहते हैं ना, बहुत टेंशन में, बहुत टेंशन। ये टेंशन की वजह से प्रेशर भी बढ़ जाता है, टेंशन की वजह से शुगर भी बढ़ जाता है, इसीलिए कहा जाता है भाई टेंशन मत करो। लेकिन ऐसा बोलने से टेंशन थोड़ी रुकेगा, वो अपने आप वो बढ़ते जाएगा। तो इसीलिए कि अभी कभी कहा जाता है कि आफ्टर 30 प्लस होने से ब्लड प्रेशर को चेक करना है। जब अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड में प्रेशर का प्रॉब्लम है, जिसके जरिए हार्ट अटैक होता है, अब वो भी प्रेशर रिलेटेड है, प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएंगे तो कोरोनरी आर्टरीज, जो आर्टरी हमारे ब्लड सप्लाई कर देते हैं ब्रेन के अंदर, चारों तरफ जो ब्लड सप्लाई ब्लड लेके जाते हैं, शुगर का जो मेडिसिन जो खाते हैं ना, साथ साथ खाना भी खाना जरूरी है। स्पेशली मोस्ट ऑफ द केसेस शुगर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाइपोग्लाइसेमिया। व्हाट इज हाइपोग्लाइसेमिया? हाइपोग्लाइसेमिया मतलब शुगर फॉल हो जाए। अगर शुगर डाउन करके फॉल किया जाए तो वो हार्ट फेल होना है। शुगर बढ़ने से उतना खतरनाक नहीं है जितना शुगर डाउन होने से खतरनाक है। इसीलिए जो पेशेंट प्रेशर डालिए, ये देखिए, ये पॉइंट को मैंने नीचे कर दिया, प्रेस को जरा मोड़ दीजिए, ऐसा पूरा सर को ढक दीजिए, इसको जरा मोबाइल में इस डॉक्यूमेंट से आ जाएगा। दोनों पॉइंट को पीछे रख दीजिए, दोनों हाथ में ले लीजिए, हाथ को जरा चेंज कर दीजिए, टाइट, दोनों घुमा के सामने ले जाइए और इसको जरा टान दीजिए। ऐसा करके पीछे से ले, पॉइंट को पीछे लेकर पीछे से लाइए, नीचे से लाकर राइट रखिए, पैर देख लीजिए तब ठीक होगा, नहीं तो हो जाएगा। चलो घूम जाओ, पीछे घूम जाओ, हां पहले देख लीजिए तब ठीक होगा। दोनों एंड्स को दोनों हाथ में ले लेकर इसको जरा कस लीजिएगा, तो सामने ले लीजिए, इसको तान लीजिए, ऐसा होगा। अब ये ललाट के बीच में इसको कस लीजिएगा, मार मार इसको ना दो एक दो ऐसा इसको दोनों ये आपस में ये और ये पीछे वाला जो है समझ में आ गया? क्लियर हुआ? ट्राई कीजिए सीधे लगाइए, चेंज करके दिखा देते हैं, देखिए अगर ये दाहिना हाथ में हो देखिए पॉइंट दाहिना हाथ में एक ये देखो
कीजिएगा तो क्या होगा, नहीं तो हाथ निकाल नो, किसी को प्रपोजल नहीं। अब कहीं लेडीज खाली क्या लेडीज प्लीज कम, ये तो एकदम सिंपल है क्या। This is our not only I'm asking you for the outside, I'm asking you for your family members, for your close neighbors, the body, the body. If you do, then this program will be successful. I would like to thank our special guests for arranging this beautiful program for all of us because first aid means it is very important for us, right? So it is our first, in general language, it is our first line of defense kind of thing. So we learned so many things today, sir. So thank you so much for that. And we really appreciate your effort. You came from Kolkata for giving us a lecture and demonstration about first aid. So we genuinely thank you. And I would like to thank each and everyone, especially our principal sir, for thinking that we need this kind of awareness program so that we can explore new things in our college, not only academically but practically also. We observe so many things today. So in coming futures and in coming days also, we expect this kind of awareness program and this kind of arrangement for us to be conducted. So I would like to thank every teachers for participating in this program, and I would like to thank every student for your cooperation. And with this, as sir have announced already, you will get certificate. So those who have registered, please check their name if it is appropriate or not, the spelling and everything. Okay. So thank you.